Welcome students, Samir Dhabalia here. Today we see the chapter correlation coefficient. In first part of video which I uploaded, आपने देखा उसमें scatter diagram and a concept of correlation coefficient. Today we see in detail the Karl-Pearson product moment method students. Very important, Karl-Pearson product moment method. Okay. Coefficient of correlation between variable x and y is denoted by r of xy or a symbol r. So formula to find r means nothing but again correlation coefficient. R means correlation coefficient. Covariance xy upon sx into sy. कोवेरेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कोवेरेंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. ऑल्सो यू कैन राइट सेम एस एक्स वाई मतलब कोवेरेंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई. दिस आर द थ्री सेम बट रिटर्न इन अ डिफरेंट फॉर्म, सेम मीनिंग. क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट कोवेरेंस एक्स वाई की फॉर्मूला क्या है. कोवेरेंस एक्स वाई, कोवेरेंस एक्स वाई या एस एक्स वाई, कोवेरेंस एक्स वाई इज नथिंग बट द सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार y minus y bar upon n. Sxy equal to sigma x minus x bar y minus y bar upon n. Sx standard deviation of x, xx क्या होता है standard deviation of x equal to root of sigma x minus x bar whole square upon n. Similar way sy standard deviation of y root of sigma y minus y bar square upon n. तुमको तीनों मिल गया कोवेरेंस एक्स वाई एस एक्स और एस वाई, कोवेरेंस एक्स वाई एस एक्स और एस वाई. बाय पुटिंग दिस थ्री फॉर्मूला इन अ मेन फॉर्मूला कोवेरेंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई वी गेट द मेन फॉर्मूला ऑफ अ कार्ल-पियर्सन विच वॉज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर. These are the main formula which was derived from this Karl-Pearson product moment method. Clear students? Again, sigma x minus x bar y minus y bar upon root of x minus x bar square root of y minus y bar square. x bar कैसे मिलेगा? sigma x upon n, y bar sigma y upon n as we know that. Again for some short sums, some other formula way to derive covariance xy की formula see. Summation of xy minus n x bar y bar upon n is only for using a sum short sums. ओके, इसे भी हम वर्कआउट कर सकते हैं. सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन. एस एक्स ये तो है ही, इसके साथ हमने ऐसे भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. एस वाई सेम वे रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर. क्लियर? तो वी गेट अगेन आर by putting same way sigma xy minus n x bar y bar, again repeat sigma xy minus n x bar y bar upon n into sx into sy upon n into sx into sy. Clear everyone? So we can get also r same sigma x minus x bar y minus y bar upon n into sx into sy. Different way, again formula. Second, also a very important formula like that. Normally for a long sums के लिए workout r equal to by putting this three 1 2 3. जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 को रख के ये फॉर्मूला डिराइव की थी. सेम वे 1 2 3 द मेन फॉर्मूला n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. अगेन रिपीट n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई upon root of n sigma x square minus sigma x whole square. Remember n sigma x square minus sigma x whole square है root of n sigma y square minus sigma y whole square. Clear? Two main formula of a Karl-Pearson which we have seen from that. First one, second one. Clear everyone? Okay. Now we see the some in detail way to get a much more clear idea for Karl-Pearson product moment method. Okay.
तो नाउ सी हियर अगेन कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड आर। तो अगेन जो आगे देखा हमने फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। सेम जो रिपीट कर रहा हूँ मैं वहाँ पे जो हमने फर्स्ट पेज पे देखा था सेम वे। सेकेंड फॉर्मूला इट्स अ फर्स्ट वन सेकेंड एंड सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर root of n sigma y square minus sigma y whole square. Clear students? These are the two main formula by the Karl Pearson product movement method normally which are used for in a long sum to derive the correlation coefficient. Remember students, the value of R correlation coefficient is always between -1 to +1 means आपका आंसर always between -1 to +1 के बीच में ही होना चाहिए. If the answer is not in within this range, that means something is wrong in a sum. Clear? The correlation coefficient R is always between -1 to +1. Clear? Good. Now R remain the same by any method. Any method मतलब कौन सी? हमने आगे देखा था स्कैटर डायग्राम या कार्ल पियर्सन, तो हमने आगे वर्कआउट कर दिया. बट टुडे वी सी कार्ल पियर्सन. तो कार्ल पियर्सन की आप ये फॉर्मूला से अप्लाई करो या ये कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए. क्लियर? बाय एनी फॉर्मूला द आंसर कंपल्सरी मस्ट बी अ सेम. नाउ वी लर्न अबाउट द इंटरप्रेट ऑफ द आर. आर को कैसे इंटरप्रेट करना है कि आपका आंसर आया आर, तो आंसर किसके बीच में होगा? अगेन रिपीट -1 to +1. तो हाउ वी इंटरप्रेट? तो नाउ सी हियर -1 +1. क्लियर स्टूडेंट्स? इफ द आंसर इज 1 तो वी कैन से परफेक्ट पॉजिटिव. अगर आपका आंसर +1 आया तो व्हाट वी कैन से परफेक्ट पॉजिटिव. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज परफेक्ट पॉजिटिव. इफ द आंसर इज -1 इट्स अ परफेक्ट नेगेटिव. अगर आपका आंसर -1 आ रहा है तो वी कैन से इट इज अ परफेक्ट नेगेटिव. इफ द आंसर इज 0, अगर आपका आंसर 0 है तो व्हाट वी कैन से लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन. लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन. इफ यू नोटिस दैट मैंने फर्स्ट जो वीडियो अपलोड किया था इन स्कैटर डायग्राम मेथड, तो वाइस वे क्लियरली सीन फ्रॉम द डायग्राम कि +1 -1 या वी कैन से 0. तो डायग्राम से आइडिया आ रहा था ऑल द पॉइंट्स ऑन सेम लाइन था तो परफेक्ट था. रिकॉल दैट? यस. तो +1 परफेक्ट पॉजिटिव, -1 परफेक्ट नेगेटिव, 0 लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन. नाउ सी हियर, suppose your answer is not 0, not -1, not +1 but somewhere around between -1 to +1. तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो सी हियर इफ द आंसर इज क्लोज टू 1 तो वी कैन से हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. अगर आपका आंसर 1 के पास है लाइक 0.75, 0.8, 0.85, 0.9 लाइक दैट, तो वी कैन से हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप. क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपका आंसर -1 के पास जा रहा है -0.85, -0.9, -0.82 लाइक दैट, तो वी कैन से हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. अगेन आपका आंसर 1 के पास जा रहा है +1 के पास, तो व्हाट वी कैन से हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशन. अगर आपका आंसर -1 के पास जा रहा है तो वी कैन से हाई डिग्री बट नेगेटिव रिलेशन. बट आपका आंसर अगर 0 के पास है तो व्हाट वी कैन राइट लो डिग्री 0.2 लाइक दैट. क्लियर हो? अगर आपका आंसर 0 के पास जा रहा है तो वी कैन एज अ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर इंटरप्रिटेशंस अगेन सी modulus of R is nearer to 1. Modulus of R is nearer to 1 close to perfect linear correlation. उसको हम क्या बोलते हैं? close to perfect linear correlation या high degree of relationship. अगेन मॉड्यूलस का मतलब आइडर प्लस भी हो सकता है या तो माइनस भी. क्या अगर आपका आंसर 1 के पास जा रहा है नियर टू 1, फिर आए +1 हो या -1 हो बट 1 के पास जा रहा हो नियर टू 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली लीनियर. अगर +1 के पास हो तो परफेक्ट पॉजिटिव हो गया, -1 के पास हुआ तो परफेक्ट नेगेटिव हो गया. तो क्लोज टू परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन. ऑल्सो वी कैन से, और क्या बोल सकते हैं उसको? हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. बट अवर आर इज नियर टू 0, बट हमारा आंसर 0 के पास जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन. सेम जो ऊपर था वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सेम मीनिंग. क्लियर स्टूडेंट्स? इंटरप्रिटेशंस मीन्स आपका आंसर 1 होगा
परफेक्ट पॉजिटिव, -1 होगा परफेक्ट नेगेटिव, 0 होगा लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन. इफ योर आंसर इज बिटवीन क्लोज टू +1 हाई डिग्री, क्लोज टू -1 अगेन हाई डिग्री, क्लोज टू 0 वी कैन से लो डिग्री. क्लियर? ओके. Now we see the same concept of Karl-Pearson coefficient by the some practical example for much more clear idea. Clear, students? Okay. Now see, here we study about the examples. Example, reading hours of a last 3 days. Reading hour of a last 3 days as marks obtained in examination. दो वेरिएबल, तो फर्स्ट कौन सा हो गया x और सेकंड कौन सा हो गया y. Clear, students? Okay. So now see the data was given 25, 38, 30, 28, 34, 40, 36. Same with y. 65, 75, 68, 70, 72, 79 and 75. Now find the correlation coefficient between the correlation coefficient find करना है किसके बीच में x और y. तो x क्या है? Reading hours of a last 3 days and the marks obtained in a examination. मतलब आपको r फाइंड करना है बिटवीन x एंड y. तो वेरी फर्स्ट स्टेप हम क्या फाइंड करेंगे? सी द सॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम हियर. n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स. तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7. क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहले फाइंड करेंगे n. स्टेप बाय स्टेप गो. x बार एंड y बार. नो डेट x बार और y बार कैसे करना है? सिग्मा x अपॉन n सिग्मा y अपॉन n. तो सी रीडिंग आवर्स ऑफ अ लास्ट 3 डेज, ये x हुआ. रीडिंग आवर्स ऑफ अ लास्ट 3 डेज इट्स x और ये हो गया आपका मार्क्स y. तो x 25 38 तो लाइक डेट 25 38 30 28 34 40 36 टोटल 231. सेम वे y मार्क्स 65 75 68 70 72 79 75 टोटल 504. तो सी वी फाइंड द फर्स्ट x बार एंड y बार. तो x बार सिग्मा x अपॉन एन कितना है? सिग्मा x 231. 231 अपॉन एन कितना है? 7. तो आंसर इज 33. ये हुआ आपका x बार 33. सेम वे y बार सिग्मा y अपॉन एन 504 अपॉन 7 विच वॉज 72. तो x बार और y बार हमको मिल गया 33 एंड 72. नाउ रिकॉल द कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट. फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा क्या थी? फॉर्मूला r सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स? ये मेन फॉर्मूला टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो इसके लिए क्या क्या वर्कआउट करना होगा हम कॉलम में वर्कआउट करेंगे, फाइंड करेंगे. फर्स्ट वी नो x माइनस एक्स बार चाहिए, y माइनस वाई बार दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर y माइनस वाई बार का. Order is not important, clear हुआ? But after seeing the formula, you have to calculate 5 column. Clear students? तो first x minus x bar फाइंड करेंगे. तो see x bar कितना है हमारा? 33. x कितना है? 25. तो see here 25 minus 33 minus 8, 38 minus 33 5, 30 minus 33 minus 3, 28 minus 33 minus 5. क्लियर स्टूडेंट्स? ईच एंड एवरी वन. तो आपको मिल जाएगा x माइनस एक्स बार. सेम वे y माइनस वाई बार. तो y बार कितना था? 72. तो सी y 65 माइनस 72 माइनस 7, 75 माइनस 72 3, 68 माइनस 72 माइनस 4. सेम वे. क्लियर स्टूडेंट्स? तो दो कॉलम मिल गई x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार. अब दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार. माइनस 8 इंटू माइनस 7 56, 5 इंटू 3 15, माइनस 3 माइनस 4 12, माइनस 5 माइनस 2 10, 0 7 इंटू 7 49 9. सम इज 151. इसका सम कितना है? 151. नाउ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब ये जो कॉलम की थी ना उसका स्क्वायर. 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 1 7 49 3 9. सम 182. सेम वे y माइनस वाई बार का स्क्वायर. माइनस 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 16 4 0 7 का 49 3 का 9 टोटल 136. तो नाउ स्टूडेंट्स
जितना भी वर्कआउट करना था हमने कैलकुलेट कर दिया है, फाइंड कर दिया, अब सिर्फ फॉर्मूला में रखना है। तो अगेन सी द फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, जो मल्टीप्लाई है उसका सम। तो देखो मल्टीप्लाई किया, उसका सम कितना है 151। तो सी हियर 151 न्यूमरेटर पार्ट क्लियर। डिवाइड बाय क्या है रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना था 182, तो रूट ऑफ 182। सेम वे रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, y माइनस वाई बार स्क्वायर 136। तो 151 अपॉन रूट ऑफ 182 इंटू रूट ऑफ 136 दोनों का मल्टीप्लाई। तो 151 अपॉन रूट ऑफ 24752 इनका रूट निकालेंगे तो 157.3277, 157.3277। क्लियर एवरीवन। तो 151 अपॉन 157.3277, तो आंसर आ रहा है 0.9598। उसको राउंड वैल्यू कर देंगे हम तो 0.96, आंसर है 0.96। नाउ इंटरप्रेट, जो भी सीखा इंटरप्रेट, आंसर किसके पास है +1 के पास। तो क्या था हाई डिग्री, तो सी द इंटरप्रिटेशन हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स क्या था रीडिंग आवर्स एंड वाई क्या था मार्क्स। क्लियर स्टूडेंट्स एवरीवन, गुड। वी सी सम अदर एग्जांपल। नाउ सी example second, number of mobile phone sold in 1000 units which was taken as a x, profit in a lakh rupees which was taken as a y, number of mobile phones sold and a profit. So given data was 3, 8, 12, 5, 7, 5, y 6, 10, 15, 10, 9, 8. Clear? Find the correlation coefficient between number of mobile phone sold एंड इट्स प्रॉफिट। फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट सेकेंड स्टडी 1 2 3 4 5 6 एन कितना आया 6। सेम वे इन लाइक फर्स्ट सम, तो सी नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड वो क्या लिया हमने x, प्रॉफिट इन y। तो पहले x और y, x क्या है 3 8 12 5 7 5, 3 8 12 5 7 5, क्लियर टोटल 40। सेम वे y 6 10 15 10 9 8, टोटल 58। तो टोटल ऑफ x टोटल ऑफ y आपको मिल गया। तो फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट द x बार एंड y बार। x बार सिग्मा x अपॉन एन 40/6, सी द आंसर 6.67, डेसिमल में आ रहा है फ्रैक्शन 6.67, सिग्मा y 58/6 9.67। नाउ स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, फोकस हियर कि फर्स्ट जो भी फॉर्मूला हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में स्टडी किया था द फॉर्मूला x माइनस एक्स बार। तो सी अगर आप यहाँ पे x माइनस एक्स बार करोगे तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। व्हाट द स्टडी थियरी सेज बाय एनी फॉर्मूला आंसर वाज द सेम, बट सी गो फॉर लॉजिकली, गो फॉर द प्रैक्टिकल वर्कआउट टू सम वाज इजी। अगर यहाँ पे x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार फाइंड करेंगे तो होगा क्या, देखो x बार तो पॉइंट में आ रहा है, तो ऑल द x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार पॉइंट में आएगा। तो it's a time consuming and chance of calculations in mistake should be more in the sum. So by avoiding such kind of situations, we go for the alternative formula by Carl Pearson, which was n sigma xy minus sigma x sigma y upon root of n sigma x square minus sigma x whole square root of n sigma y square minus sigma y whole square. Clear students? अगेन फर्स्ट फॉर्मूला से भी आंसर आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, बट गो फॉर द प्रैक्टिकल वर्कआउट के सम को कैसे इजी किया जाए। तो इफ़ योर एक्स बार और वाई बार, अगर आपका एक्स बार और वाई बार कोई भी एक या दोनों फ्रैक्शन में आ रहे, कोई भी एक भी फ्रैक्शन में हुआ या दोनों फ्रैक्शन में हुए, तो गो फॉर दिस फॉर्मूला। क्लियर। इफ बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर में थे जो भी फर्स्ट सम किया हमने ना, देन यू कैन गो फॉर दैट एक्स माइनस एक्स बार। To clear the concept, why the two formula here given by the Carl Pearson for calculating the sum was simple. Okay, तो now here we can say ये formula में apply करेंगे तो ये formula के लिए क्या चाहिए, also calculation part simple, उसमें 5 columns हमने calculate किए थे, here require only 3 column which was xy, x square and y square.
only 3 column which we needed. Clear? So see now, first calculate xy. X into y, 3 into 6, 8 into 10, 12 into 15, 5 into 10, 7 into 9, 5 into 8. Total 431. Clear? Then x square. x है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 8, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7, 5 का स्क्वायर 25. टोटल 316. सेम वे y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 15 का 225, 100, 9 का 81, 8 का 64. टोटल 606. तो वी कैलकुलेट द 3 कॉलम एक्स वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. नाउ बाय सीइंग द फॉर्मूला, जो चाहिए कैलकुलेशंस हमने वो फाइंड कर दिए. नाउ सी इन द फॉर अप्लाइंग इन अ फॉर्मूला बाय पुट अप सम वैल्यूज. नाउ सी एन कितना है सब में 6. सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई कितना आया था 431. सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स तो रिमेंबर ये है सिग्मा एक्स कितना है 40. सिग्मा वाई इट्स अ सिग्मा वाई कितना है 58. क्लियर? न्यूमरेटर पार्ट डिवाइड बाय अंडर रूट क्या है एन, कितना है एन 6. सिग्मा एक्स स्क्वायर रिमेंबर ये है सिग्मा एक्स स्क्वायर इट्स 1. ये है आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर विच वॉज 316 माइनस क्या लिखा है सिग्मा एक्स होल स्क्वायर. सिग्मा एक्स कितना था 40 का होल स्क्वायर. डोंट डू एनी सिली मिस्टेक बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. क्लियर? अदरवाइज सम वाज सिंपल बट जस्ट द मिस्टेक इज लाइक दैट के पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला. सेम वे फॉर वाई, रूट ऑफ एन वॉज 6. सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा वाई स्क्वायर ये है सिग्मा वाई स्क्वायर कितना था 606 माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, सिग्मा वाई होल स्क्वायर 58 का होल स्क्वायर. नाउ फाइंडिंग द वैल्यू 431 into 6 2586, 40 into 58 2320 डिवाइड बाय 316 into 6 1896 माइनस 40 का स्क्वायर 1600. अगेन रूट 606 into 6 3636 माइनस 58 का स्क्वायर 3364. क्लियर स्टूडेंट्स? तो बाय सीइंग फ्रॉम दैट वी गेट 2586 माइनस 2320 266. 1896 माइनस 1600 का रूट 296. 3636 माइनस 3364 का रूट 272. 266 अपॉन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो विच वॉज 80512. तो वी गेट 266 अपॉन 283.7464. तो अगेन सी द आंसर 0.9375. अगेन गो फॉर द राउंड वैल्यू 0.94. तो अगेन आपका आंसर किसके पास आया क्लोज टू +1. तो हाउ वी कैन इंटरप्रेट हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. कौन से तो दो वेरिएबल? नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड एंड इट्स प्रॉफिट. क्लियर? गुड. Clear students? Okay, listen everyone. Carl Pearson formula, we see the first method and second method, means Carl Pearson alternative formula. Carl Pearson given one more formula as a shortcut method. I upload the video in the next part for the Carl Pearson shortcut method students. Clear? I hope so you clear the two alternative formula given by the Carl Pearson product movement method. Please like and subscribe my channel for much more video. Okay, thank you.